Hello everyone, I hope all of you are fine. Now I will start this session with my introduction that my name is Jitan Somaya. I have cracked the GATE examination for the 2 times and my recent or latest GATE score is AIR 499 with 60 marks. Now today we are going to discuss about this stability of the system using RH criterion. So in the previous session also we have discussed about the RH criterion and also we have solved some examples based on the RH criterion. Now before to move ahead, do subscribe this channel and share this video with your friends more and more, because more students can take the benefit of this video. Now moving ahead. Now in the previous session we have solved or we have discussed actually about the stability of the system, then characteristic equations, then stability through location of poles, then RH criterion and then we have solved some examples. तो वापस से एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि स्टेबिलिटी क्या होती है, वो तो हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट्स में देखा था. देन व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट the characteristic equation is nothing but the denominator part of the CLTF. CLTF means closed loop transfer function का जो डिनोमिनेटर होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है, और वहाँ से हम लोग उसके रूट्स निकाल के हम लोग स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं. नाउ स्टेबिलिटी थ्रू लोकेशन ऑफ पोल्स. तो स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए एक्चुअली, द लोकेशन ऑफ पोल्स. So now suppose if any pole is lying, means suppose if all the poles are lying on the LHS, है ना, then you can say that yes the system is stable. But if only one pole, if among all the poles if one pole is lying on the RHS, then you can say that the system is unstable. And if the poles are lying on the imaginary axis and the remaining poles are lying on the LHS, then you can say that yes the system is nothing but the marginally stable system. बट किसी को ऐसा डाउट होगा कि सर अगर मार्जिनली मतलब इमेजिनरी एक्सिस पर अगर पोल्स लाई कर रहे और एक पोल आरएचएस में है तो मार्जिनली बोलेंगे या अनस्टेबल बोलेंगे. तो अगर एक भी पोल अगर आरएचएस में लाई कर रहा है तो उसको हमको क्या बोलना पड़ेगा, अनस्टेबल सिस्टम. क्लियर. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आरएच क्राइटेरियन एंड देन वी हैव सोल्व्ड द एग्जांपल्स. तो आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, है ना. So now see, also we have seen about this RH array, that how to create the RH array from the given characteristic equation. So a5 s raised to 5 plus a4 s raised to 4, and this is nothing but the characteristic equation. Now how you can create the RH array actually from the given characteristic equation. So this is nothing but the particular method or you can say process. तो s raised to 5 से आपको स्टार्ट कर देना है, s raised to 0 तक आना है, और यहाँ से s raised to 5 से स्टार्ट किया है तो उसका कोफिशिएंट मतलब s raised to 5 कैसा होता है, कैसा नंबर होता है, इवन या ओड नंबर. तो ओड नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, ओड नंबर पावर वाले आपको कोफिशिएंट यहाँ पर लिखने हैं. तो मतलब a5 लिख दिया, a3 लिख दिया, a1 लिख दिया. क्लियर. बाद में s raised to 4 वाला तो मतलब इवन पावर वाला कोफिशिएंट लिखना, a4 a2 a0. बाद में सर ये b1 b2 c1 c2 कैसे लिखना है, तो ये मैंने आपको बताया था कि b1 लिखना है तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दिस फर्स्ट कॉलम कोफिशिएंट मतलब a4. अगर आपको b2 भी लिखना है then what you can do actually, you have to do this cross multiplication a4 into a1 minus a5 a0, but you have to divide it with the a4 actually, है ना. So this is nothing but the basic method actually that by which you can create the RH array. ओके सर, RH array समझ में आ गया कैसे हमको क्रिएट करना है. देन वी हैव सोल्व्ड दिस एग्जांपल. ओके सर, तो इस तरीके से अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया जाएगा तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू फॉर्म द RH array. तो सर RH array फॉर्म करना आपने सिखा दिया था, 1 10 10 यहाँ पर 1 6 0. इट इज़ ओके सर. नाउ ऑल्सो वी गोट दिस वैल्यूज, है ना, बाय सॉल्विंग ओवर हियर, है ना. ओके सर, तो अब बाद में सर हमको स्टेबिलिटी के ऊपर कैसे कमेंट करना है वो बता दीजिए एक बार वापस से. So to comment on the stability from the RH array, what you have to see actually, you have to see or you have to analyze this first column only. तो सर फर्स्ट कॉलम को एनालाइज कैसे करना है, देखो इफ यू आर गेटिंग द ऑल द पॉजिटिव कोफिशिएंट्स ओवर हियर, then it means what, that all the poles are lying on the LHS. So it means what, that your system is stable, it is okay. तो सर अनस्टेबल कैसे बोला जाएगा,
तो उसका भी एक एग्जाम्पल तो हम लोगों ने ले रखा था. सपोज इफ यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन यू हैव टू क्रिएट द RH array actually by this method which we are following actually. But over here if you can see, then over here you are getting the positive coefficient है ना. मैंने यहाँ पर पॉजिटिव इसके लिए लिखा है कि भाई पॉजिटिव कोफिशिएंट मिला, बाद में नेगेटिव यहाँ पर इसलिए लिखा है कि नेगेटिव कोफिशिएंट मिला, बाद में वापस से पॉजिटिव, बाद में पॉजिटिव. ओके, सो नाउ यू आर गेटिंग द साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम एक्चुअली. आप यहाँ पर देखिए आपको कोई भी साइन चेंज नहीं मिल रहा था, पॉजिटिव 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 है ना. बट यहाँ पर देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. सो 2 साइन चेंजेस यू आर गेटिंग एक्चुअली इन द फर्स्ट कॉलम. तो यहाँ पर पॉजिटिव में से नेगेटिव हुआ एक साइन चेंज, एंड नेगेटिव में से पॉजिटिव हुआ दूसरा साइन चेंज हुआ. सो 2 नंबर ऑफ साइन चेंजेस यू आर गेटिंग इन द फर्स्ट कॉलम एक्चुअली. सो RH क्राइटेरियन में रूल कैसा होता है कि द नंबर ऑफ साइन चेंजेस यू आर गेटिंग इन द फर्स्ट कॉलम, दैट मच नंबर ऑफ पोल्स विल लाई और आर लाइंग ऑन द RHS. तो मतलब भाई 2 नंबर ऑफ साइन चेंजेस मिला तो हमको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि दैट द 2 नंबर ऑफ पोल्स आर लाइंग ऑन द RHS. तो मैंने क्या बोला था कि अगर RHS में एक भी पोल लाई कर रहा है तो हमको तो उसको अनस्टेबल बोलना पड़ेगा. तो मैंने बोल दिया बेटा कि यहाँ पर अनस्टेबल. ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट you may get 2 types of questions actually from the RH array. एक तो ये पूछा जाएगा कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स आर लाइंग ऑन द LHS, RHS एंड ऑन द इमेजिनरी एक्सिस. एंड दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा डायरेक्टली यू हैव टू कमेंट ऑन द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, वेदर द सिस्टम इज स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल और अनस्टेबल. क्लियर. तो इस तरीके से वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमको प्रिपेयर रहना होगा. नाउ मूविंग अहेड, नाउ सी सम ऑफ यू हैव स्टिल एनी डाउट दैट सर व्हाई वी हैव टू यूज दिस RH क्राइटेरियन. सो सी, suppose if you want to comment on the stability, then you must know about the location of poles. Okay sir, तो location of poles आपको कहाँ पर मिलेंगे? That means you have to get the roots of the characteristic equation. Okay, तो roots of the characteristic equation अगर आपको चाहिए तो चलो एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक characteristic equation में लिख रहा हूँ सिंपल सेकंड ऑर्डर वाला. हाँ सर, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेकंड ऑर्डर वाला है. ऑर्डर मतलब क्या, यहाँ पर यू हैव टू चेक दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ द एस टर्म. तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2, 0 s⁻1 s⁻2 मतलब 2 इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द एस टर्म एक्चुअली. सो इट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके सर, अब तो भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास है तो आप लोग क्या करते हो जनरल मेथड कि उसको इक्वेट कर देते हो किसके साथ? 0 के साथ. एंड यू विल गेट द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज नथिंग बट दिस एक्चुअली है ना. सो यू विल गेट s इज इक्वल टू -1 तो भाई s इज इक्वल टू -1 मिला तो आपको पता है कि वो यहाँ पर लाई करने वाला है सर. वो मतलब सॉरी दोनों सेम ही मिल रहे हैं ना. ओके, नो इश्यू. क्लियर. ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ. दोनों एक ही जगह पर मिल रहे हैं, -1 दोनों एक ही जगह पर मिल रहे हैं, -1 ओके. बट both of these poles are lying actually on the LHS, so you can say that yes the system is stable system. okay, चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली कि दैट व्हाई वी हैव टू यूज दिस RH क्राइटेरियन. तो भाई एक ये सेकंड ऑर्डर वाला था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो तो इजी था बेटा आपके लिए है ना सोल्व करना. अब चलो एक और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देता हूँ आपके लिए. s³ + s² + 11s + 6. ओके सर, ये थर्ड ऑर्डर वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाएगा. हाँ बेटा, उसको थर्ड ऑर्डर वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाएगा क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3. क्लियर. सो दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके सर, अब क्या करेंगे? अब आपको पता है यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो यू विल इक्वेट दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विद द 0. ओके सर, अब तो बेटा थर्ड ऑर्डर में आपको मालूम है कि क्या प्रोसीजर होती है एक्चुअली, बट आई एम ऑलरेडी नोइंग अबाउट दिस थिंग है ना. s+1 s+2 s+3 ये इसके रूट्स मिलने वाले हैं आपको. सो यू विल गेट s इज इक्वल टू -1 s इज इक्वल टू -2 s इज इक्वल टू -3. वाई आई हैव रिटर्न दिस रूट्स? बिकॉज आई एम नोइंग ऑलरेडी अबाउट इट, दैट्स वाई है ना. ओके सर, तो थर्ड ऑर्डर के लिए अगर आप सोल्व करने बैठोगे ना तो आपको मालूम है कि कितनी देर लगने वाली है ये रूट्स फाइंड करने में एक्चुअली है ना. आपको पता है सब कुछ है ना. तो ये रूट्स फाइंड करने में कितनी देर लगती है वो आपको पता है.
Now see, all the poles are lying on the LHS actually, so easily you can comment on the stability that yes, the system is nothing but the stable system. ओके बट सर ये थर्ड ऑर्डर था तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हमारे लिए. ओके तो गेट वाले तो आपको भाई फिफ्थ और सिक्स ऑर्डर तक पूछने वाले. सपोज इफ आई गिव दिस टाइप ऑफ एग्जांपल टू यू, देन व्हाट यू विल डू. चलो फोर्थ ऑर्डर वाला, इसके रूट्स कैसे फाइंड करोगे आप. And suppose if you are able to find the roots of this characteristic equation, then also it is nothing but the time consuming method, है ना. और चलो ये तो फोर्थ ऑर्डर बोला था, अभी तो फिफ्थ ऑर्डर, और चलो सिक्स्थ ऑर्डर ही दे देता हूँ. क्लियर. सिक्स्थ ऑर्डर, चलो तो सर सिक्स्थ ऑर्डर देखे तो हमारा मोरल ही डाउन हो गया. अब तो सिक्स्थ ऑर्डर देख के तो आपको मोरल डाउन नहीं करना बेटा. व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, दैट यू हैव टू यूज द आरएच क्राइटेरियन. आरएच क्राइटेरियन उसी के लिए बना है. अब समझ में आया. अगर किसी को डाउट है कि सर वाई वी आर यूजिंग दिस आरएच क्राइटेरियन, तो भाई सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर तक ठीक है, बट सपोज इफ यू आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मोर देन थर्ड ऑर्डर, देन व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल फाइंड द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. So for that purpose, to make it easy actually, we are using the RH criterion. By RH criterion you will know actually that the number of poles lying on the LHS, RHS and imaginary axis, and then easily you can comment on the stability. Clear. So भाई ये S/4 S/6 आ गया तो वो हम लोग RH क्राइटेरियन से इजीली सोल्व कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग RH क्राइटेरियन का यूज करते हैं. क्लियर. अब ये देख के अपना मोरल डाउन होना नहीं चाहिए, है ना. वो भी क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर सकते हैं. विद इन 1 मिनट यू कैन गिव द आंसर एक्चुअली, ना. विद इन 1 और 2 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स, है ना. ओके नाउ मूविंग ऑन, दैट सी नाउ we'll solve this question actually, and why I have taken this question or example we'll discuss about it later, but first of all we'll try to solve this question. तो आप लोगों को पता है कि सर यही मेथड होती है हमारी, है ना. आपने सिखाया है कि आरएच एरे कैसे बनाना है हमको. okay now over here you just see, and means over here I have to do the calculation, ना. देख लीजिए ये कैसे सोल्व करना है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 60 माइनस 36 बाई 6 means 24 by 6 means you have to write it over here 4. तो 4 लिख दिया. then over here 6 into 10 minus 0 divided by 6, so you have to write 10 0. then 36 into 4, चलो भाई 36 into 4 क्या होता है. तो सर वो तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, वापस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा करोगे ना. तो यहाँ पर कैलकुलेशन ये तो 36 इंटू 4 है, कई बार ऐसा भी हो जाएगा 36 इंटू 9, 36 इंटू 7, सपोज ऐसा भी मिल जाए 63 इंटू 7. तो यहाँ पर आपको कैसे करना होगा सोल्व. दैट सी वन रूल इज देयर एक्चुअली, दैट यू कैन डिवाइड और यू कैन मल्टीप्लाई. I will give you in the written statement actually, but the thing is that you can divide or you can multiply to the particular row of RH array with positive real number actually, without changing the sign actually, है ना. that's why positive real number. मतलब सर आप क्या बोले, देखो अगर यहाँ पर 6 and 36 है, ये कॉलम की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पर 6 and 36 है, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है. हाँ सर निकल सकता है 6, तो कॉमन निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर 6 and 36 की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ अब 1 and 6. अब देखिए, अब आपका आंसर लाने की ट्राई कीजिए. 10 minus 6 मीन्स 4, 4 by 1 4 मीन्स यू विल गेट द सेम आंसर एक्चुअली, है ना. बट हम लोगों ने क्या किया, पहले से कॉमन निकाल लिया. वो कॉमन सर क्यों निकाल रहे, वो जरूरी है क्या, वो गेट में कोई पूछने वाला है क्या. देखो कॉमन निकाल क्यों रहे हम लोग, बिकॉज वी मेक टू कैलकुलेशन इजी एक्चुअली. क्लियर. दैट इज द पर्पज ओनली. नाउ सी, नाउ इजीली यू कैन मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स एक्चुअली. यहाँ पर 36 इंटू 4 था तो हमको मज़ा नहीं आ रहा था सर. अब यहाँ पर
यहाँ पर 6 इंटू 4 आप कर लो 24, 24 माइनस 10, 14, 14/4, सो 7/2 एक्चुअली यू विल गेट। और यहाँ से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बट ये तो सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रखा है। अदरवाइज ऑल्सो यू कैन मीन्स देखो यहाँ पर आपको कितना मिल रहा था 7/2, मतलब 14/4, 7/2 मिल रहा था। और देखो यहाँ पर अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो भी सेम ही आंसर मिलेगा। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 कॉमन लेके 2 and 5, so 12 minus 5 divided by 2, so you will get the 7/2. Then again 0, then 0, then if you will do the cross multiplication and divide it by this number, then you will get 5, then again 0 and 0. So this is the thing, actually you can multiply or you can divide any particular row with the positive real number without changing the sign. क्लियर? सो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट इट विल मेक योर कैलकुलेशन इजी। क्लियर? तो अब कमेंट करना है हमको स्टेबिलिटी के ऊपर सर, तो वो कैसे करेंगे कि भाई जस्ट सी द फर्स्ट कॉलम ऑफ द आरएच एरे, ऑल द कोफिशियंट्स यू आर गेटिंग द पॉजिटिव कोफिशियंट्स, तो मतलब साइन चेंज हो ही नहीं रहा है सर। तो आपने बोला था अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो सब, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है और एक भी ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन अलग बात हो जाती है, बट वो अभी हमारा डिस्कशन वाला पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो सर आपने बोला था कि ऑल द पोल्स आर लाइंग ऑन द LHS, तो इसको कैसा बोला जाएगा, स्टेबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम। क्लियर? सो ओवर हियर आई विल गिव यू दिस rule 1 actually, that any particular row of RH array can be multiplied or divided by a positive real number, and in bracket I will write it over here that without changing the sign. क्लियर? समझ में आ गया ये स्टेटमेंट, है ना? ओके, तो वापिस से देख लो, यहाँ पर हमको मिल रहा था एक्चुअल में 6 and 36, बट हम लोगों ने 6 कॉमन निकाल दिया। और सर कॉमन निकालने के बाद उसको कहीं पर लिखना है, नहीं लिखना है ना, बिकॉज डायरेक्टली इट विल बी कैंसल आउट एक्चुअली, दैट्स वाई, है ना। यहाँ पर भी देख लो, ये सब कुछ कैंसल आउट होकर आपको 4 ही मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको 4 ही मिल रहा था एक्चुअली, है ना। ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन ओवर हियर with this example, and we'll discuss about the third order characteristic equation with some shortcuts in the next video. Thank you very much.